Hello everyone, welcome to slot 3 CAT 2025 quantitative aptitude questions and their solutions. So we have the first question that it is from time and work actually. So question is saying that there are three taps A, B, C and they can fill the tank. Their rate of flow is 4, 9 and 36, right? So this is a rate of flow. So whenever we are saying that is rate of doing work, it is actually the efficiency, right? So this is also the efficiency, right? So I can say their efficiency is 4, 9 and 6, 4, 9 and 36. Now it is saying that pipe, an empty tank can be filled by the pipe A in 15 hours. So it is taking 15 hours. So per hour, the pipe A is doing 4 liter, or I can say it is filling up the tank by 4 liter. So in 15 hours, what is the total amount of work that has been done by the pipe A? That is 15 into 4, 60. So I can say the total work has to be 60 liter, right? तो यहाँ पे आपको combinedly if they are working together we have to find the time taken to fill up the tank, right? So this is the 60 and the combined efficiency of all three will be 4 plus 9 13 plus 36, that is 49. So we have to find the answer in the nearest integer value, right? So instead of 49 if I take 50, so this is 1.2 hour, or I can say 72 minute. So 72 is the answer when I have just increased the denominator by a very small number, right? So if I just decrease the denominator, so answer will be just more than the 72, and in this case the answer is 73. Hopefully it is clear. Option number 3 is my correct answer, right? Now moving to the next question. Now it is saying that time and work का question है ये. Ankita walks from A to C via B. So Ankita is going to A to C via the point B, and it is walking side, and the returning is running side. Right, they are running. Now the speed of running is 40% more than the walking speed, right? So 40%, that is 2 by 5. So if I assume the walking speed is 5x, then the running speed would be 40% more, means 7x, right? Now it is saying that she exactly take 3.5 hours, or I can say 7 by 2 hours to walk from B to C, right? So this is a walking time, and similarly from the running perspective, that she is taking again 3.5 hours or 7 by 2 hours with the walking or the running also, right? With the running speed also. तो दोनों ही केस में 7/2 आवर्स लगते हैं. वॉकिंग में BC डिस्टेंस है और यहाँ पर AB डिस्टेंस है. तो अगर हमको BC डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड इज 5x walking speed and the time is 7 by 2. And if I talk about the AB distance, so 7 by 2 is common, and again the speed is 7x, right? So what is the total distance actually? So if I take total distance is, just add on, so I'll take 7 by 2 common, 5x plus 7x. So this is 7 by 2 into 12x, so this is 42x, right? In terms of x, in terms of x. Now we have to find that she would take walking from A to B. A to B का वॉक करना है और B to C को रनिंग करना है. तो टाइम निकालना आपको, राइट? टाइम, दैट्स प्रेटी सिंपल. नाउ मीन्स वॉकिंग A to B distance. So A to B distance is 49x upon 2, and the time is distance upon speed. So what is the walking speed? Actually the 5x. So we have to divide it by 5x plus BC. The distance is BC distance is 35x upon 2, and their running speed is 1 by 7x. So this is going to be that is 49 upon 10 plus 5 upon 2. So I can take 10 LCM. So this is 49 plus 25. So 70 upon 4, 74 upon 10 hours. Now, but I want answer to be in minutes, right? So to convert hour into minute, I have to just multiply this by 60.
So this is going to be 444 minute. That's it. So hopefully it is clear also, right? Now moving ahead to the next question. This is basic exponent question. It can be done easily, but थोड़ा time taking था, right? ये. So if I say this is 12 की power 12x multiply 4 की power 24x plus 12 into 5 की power 2y equals to 8 की power 4z into 20 की power 12x into 343 power 3x minus 6, right? ओके, सो हमको बेस इक्वल करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 is 2 square, this is 24x plus 12 and 5 is as it is, that is 2y equals to, this is 2 की power 3, 20 is 2 का square into 5 into 12x into 343 is 3 की power 5 into 3x minus 6, right? So this is the, I can say, simplest power we can say, right? So on the left hand side the power of 2 is 24x plus 48x plus 24. The power of 3 is 12x and simply the power of y is, that is 5 is 2y, right? Now on the right hand side the power of 2 is 12z plus 24x. 3 का पावर यहाँ पे 15x माइनस 30 है और 5 का पावर यहाँ पे 12x है, right? Now I can find x, y, z also, right? So if I compare, first of all 3 का पावर कंपेयर करते हैं, from that I can directly get the value of x, right? So 3 की पावर 12x should be equals to 3 की पावर 15x minus 30, which implies 12x equals to 15x minus 30. So 30 equals to 3x, x का वैल्यू 10 आ जाएगा. तो x is coming out to be 10, right? उसके बाद x का वैल्यू 10 आने पर मैं 5 की पावर को अगर कंपेयर करता हूँ, so this is 12 times of x, so I can say 2y equals to 12 times of x, y is 6 times of x. Now x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 60 आ जाएगा, right? Now we have x also, we have y also. Now it is time to find the value of z, right? तो z का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज यहाँ से, राइट? तो 2 का पावर है आपके पास, 2 का पावर है 72x प्लस 24 और z का पावर है दोस्तों 12, इधर राइट हैंड साइड में 2 का पावर 12z प्लस 24x, right? Now again comparing the exponents, so 72x plus 24 should be equals to 12z plus 24x, तो 48x प्लस 20 इक्वल्स टू 12z, तो z का वैल्यू आ जाएगा 4x प्लस 2. नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 10, राइट? तो z इज कमिंग आउट टू बी, इट इज 4 into 10 plus 2, तो z का वैल्यू 42 आएगा. आई होप इट इज क्लियर, राइट? So now we have to find the value of x plus y plus z. So this is x का वैल्यू 10 है, y का 60 है और z का वैल्यू 42 है, तो 112 इसका राइट आंसर है. आई होप इट इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज कंपैरेटिवली इजी था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है? इसको भी हम कर सकते हैं. दैट वी हैव मैनेजर्स, वी हैव इंजीनियर्स, राइट? So we have 5 managers, we have 25 engineers and their average salary it is given to us 60,000. So in terms of k is 1,000, right? So I can say the the average salary of a one manager is m. So according to the question 5m plus 25e is actually 30, है ना? टोटल आ जाएगा 30 इंटू 30 करेंगे ना, टोटल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई? 60k इंटू 30 करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, तो इंटू 30 इंटू मतलब 60k इंटू 30, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1800k, ठीक है? और उसके बाद बोलता है कि एवरेज सैलरी मैनेजर की एक 20% बढ़ गई, मतलब सबकी,
तो अगर मैं m को 20% बढ़ाऊंगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.2 m, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंजीनियर की सैलरी आज भी उतनी है, देयर इज नो चेंज इन द सैलरी ऑफ इंजीनियर, एंड ओवरऑल देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 5%, राइट। सो व्हाट इज अ 5% ऑफ 60,000? 60,000 का 10% होता है 6,000, और 5% हो जाएगा 3,000। तो अभी जो एवरेज बनेगा 63,000, बट नंबर ऑफ पर्सन तो आज भी 30 रहेंगे, तो ये बनेगा 30 इंटू 3 189K, राइट। नाउ आई कैन सॉल्व, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, जस्ट सब्ट्रैक्ट, हाँ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 6m, तो माइनस का m इक्वल्स टू, तो ये आपके पास कैंसिल आउट होके बनेगा माइनस का 90, है ना भाई, 180 और 90K, m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 15K, ठीक है, m का वैल्यू आ जाएगा 15K। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नहीं 15K क्यों, तो m आएगा ना, एक मिनट, यहाँ से आपके पास m बचेगा, इट इज ओनली माइनस m, राइट। तो m का वैल्यू आ जाएगा 90K, ठीक है। नाउ m का वैल्यू आपको आ गया, m का वैल्यू, नाउ वी हैव टू फाइंड द इंजीनियर्स का सैलरी निकालना, एवरेज सैलरी, राइट। तो आई कैन सी 25E इक्वल्स टू टोटल 1800,000, है ना, 1800,000 में से 5 मैनेजर की सैलरी माइनस करेंगे, माइनस का 5 इंटू 90K, तो ये बनेगा 1800K, और ये बनेगा 450K, तो ये बनेगा 1350K, है ना भाई, 1350। अब K का वैल्यू 1000 है, तो 1350 इंटू 1000, और इवन हम K के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो एक इंजीनियर का वैल्यू निकालना, राइट, ठीक है। तो 25 पंजे 125, और 10 बचेगा यहाँ पर, 25 चौके 100, ठीक है, तो 54,000 आ जाएगा एक इंजीनियर का सैलरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, एंड fx एक फंक्शन है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है f ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 9701, राइट। देखो, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना था, यहाँ पर ये जो नंबर है और ये जो नंबर है सेम टू सेम लिखा है, ऑफ कोर्स, राइट। तो थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर प्लस 3x को हम t अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ये बनेगा t इंटू टी प्लस 2, राइट। तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t, दैट इज अ वैल्यू ऑफ fx, राइट। तो इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और एकदम दिमाग में घंटी बजेगी, सर ये तो होल स्क्वायर बन गया, तो दिस बिकम t प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट के अंदर 9701, राइट। सो अगर आप कभी भी एक्स स्क्वायर है ना और रूट के अंदर है, बाहर लेके आओगे तो पॉजिटिव नंबर निकलता है, राइट। तो अगर आप इसका रूट रिमूव करोगे तो t प्लस 1 इक्वल्स टू 9701, ठीक है। तो t का वैल्यू आ जाएगा 9700 आ जाएगा, राइट। तो t को तो आपने अज्यूम कर रखा है कितना, है ना, वी हैव टेकन t एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और माइनस 9700 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ इट इज आस्किंग कि आपको सम ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव मतलब रूट्स हैं उसका वैल्यू निकालना है। भाई सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है सम ऑफ रूट, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का 3/1, दैट इज माइनस का 3 इसका राइट आंसर बन जाए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा मेहनत कराने वाला क्वेश्चन है, बट डुएबल था, ठीक है। तो ए और बी आपके पास दो बॉक्सेस हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे 17x है मान लेते हैं, और यहाँ पे 7x है। अभी आपने 108 कॉइन्स, हाँ वी हैव ट्रांसफर्ड 108 कॉइन्स फ्रॉम ए टू बी, तो 108 इधर से माइनस होके इधर प्लस हो जाएगा, राइट। एंड एज ए रिजल्ट द रेशियो बिकम्स 37/20, राइट। रेशियो बिकम 37/20, राइट।
देखो और भी लॉजिक है, बट फिलहाल अब इसे कर देते हैं, राइट। तो 17 × 2 होता है 340 एक्स माइनस 2160 इक्वल्स टू 37 × 7 होता है 259 एक्स प्लस 37 × 108। तो 100 + 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3700 और ये हो जाएगा 296। तो 3996 है। मैं ऐसा गलत तो नहीं कर सकता वैसे, ठीक है। 37 × 8, 37 होनी 74, 74 का मतलब 148 का मतलब 296, राइट, ठीक है। तो ये बनेगा 3996। तो यहाँ से इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये बनेगा 340x माइनस 259x इक्वल्स टू 3996 प्लस 2160, राइट। तो ये बनेगा 6 और यहाँ 16 और 99, 115 मतलब 6 9 15 और 39 और 1 40 21 61, राइट। और ये बनेगा 41 81 एक्स, राइट। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6156/81। तो हालांकि एग्जाम में आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट रिजल्ट 76 आएगा, राइट। मेरे इस स्लॉट का क्वेश्चन था तो 76 आ गया था। आप 27 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल वेज, राइट। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 76, तो टोटल जो कॉइन्स हैं ना, तो टोटल कॉइन्स हैं कॉइन ए प्लस कॉइन बी। तो कॉइन ए 17x और यहाँ पे 7x, ठीक है। तो 24x, तो 24 × 76 करना है, ठीक है। तो 24 × 144, 24 × 7 168 और 14 182। टोटल 1824 कॉइन है, राइट। अब लास्ट में बोलता है कि और कितने फर्दर कॉइन्स ट्रांसफर करें जिससे कि 1:1 का रेशो हो जाए। तो 1:1 का रेशो बनाने के लिए तो मतलब इक्वल इक्वल करना पड़ेगा। तो आप कॉइन ए और कॉइन बी को बराबर करना चाहते हैं, तो ये बराबर तब होंगे जब 1824 को आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दोगे इक्वल में, तो 912। समझ में आ गया, ठीक है। अभी कॉइन बी में है कितने, है ना, कॉइन बी बॉक्स में कितने कॉइन है, वो 7x है। तो 7 × 76, तो 6 7 42 और 4 6 532। तो 532 अभी अवेलेबल है और 912 करने हैं, ठीक है। तो 912 में से 532 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 380 बनेगा। बट 380 में से बहुत सारे बच्चों ने शायद से यहाँ पे गलत कर दिया होगा। 380 में से ऑलरेडी आपने 108 तो ट्रांसफर कर दिया क्योंकि आपसे फर्दर बोलता है, ठीक है। तो मोर कॉइन्स टू बी ट्रांसफर्ड, तो 380 में से 108 और माइनस करेंगे तो इस सवाल का जो सही उत्तर मेरे हिसाब से 272 आएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। तो 4 डिजिट का नंबर है, लेट द नंबर बी ABCD greater than 1000 is sum of the digit in the 1000, 100 and tens places. This is unit, tens, 100 और 1000। तो सम ऑफ द डिजिट इन 1000, 100 और टेंस मतलब a + b + c, ये आपको 15 दे रखा है और 100 टेंस और यूनिट प्लेस 16 दे रखा है, मतलब b + c + d जो है वो 16 दे रखा है, राइट। तो कुछ ना समझ में आएगा तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। तो आई कैन से d - a का वैल्यू 1 है, मतलब d का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और a का वैल्यू d से कम है, ऐसा 1 कम है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ उसने ये बोला है कि डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 6 मोर देन द, मतलब जो c है वो d से 6 ज़्यादा है, ठीक। c जो है वो d से 6 ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ पे पॉसिबल d कितने हो सकते हैं और उसमें c वैल्यूज ऑफ c, ठीक है। तो पॉसिबल d के कितने मान हो सकते हैं भाई, d 0 भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो d अगर 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे अब, ठीक है, d अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे c का वैल्यू 6 हो जाएगा, d 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 2 होने पर 8 हो जाएगा और 3 होने पर 9 हो जाएगा। इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। समझ में आ गया, राइट। अगर इसी बात को अब a के लिए देख लेते हैं, a की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी। हाँ, ठीक है। तो d अगर 0 है तो a तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। d अगर 1 है, a 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। ये a की वैल्यूज आ गई।
तो क्वेश्चन ये है कि आपको 1000 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये वाले दोनों केस तो खत्म ही हो गए भाई, यहाँ पे जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो नंबर बन सकता है, वी कैन स्टार्ट विद 1, और पॉसिबल वैल्यू डी का अगर 2 है ना, डी का 2 है तो फिर सी का 8 बनेगा, या फिर 2 यहाँ पे 9 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये दो नंबर बन सकते हैं, राइट। अब बी के बारे में थोड़ा और ज्ञान लगाते हैं। ज्ञान ये है कि इनका जो सम है, शुरू के 3 नंबर्स का ए बी सी का सम 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है, 9 है, ये 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में 16 आना चाहिए, 6 8 14 16, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे 16 का आने के लिए यहाँ पे 4 बनेगा भाई, 4 9 13 3 16, और 9 और 4 13 2 15, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर आप बना सकते हो 2493 बना सकते हो, सबसे छोटा नंबर जो बन सकता है 1682। यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 811। तो 811 इस सवाल का राइट आंसर है। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, अच्छा लगा होगा आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी थोड़ा डायलामा में लगता है, बट जो ऑफिशियल आंसर की दे रखी है उसमें थर्ड ऑप्शन है, तो देखते हैं। बट मुझे लगता है कि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। वैसे थर्ड भी लॉजिकली फिट बैठा, क्योंकि मेरा गलत हो गया था, राइट। गलत इसलिए हो गया था क्योंकि मेरा लॉजिक कुछ राइट। तो log ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स मतलब प्लस 2, राइट। तो सबको इधर लेके आ जाते हैं पहले तो log ऑफ x माइनस 3 ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इसको अगर मैं हटा देता हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 3 भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जब आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस करोगे, मतलब जब इसको सॉल्व करोगे, तो इसको तो इधर लेके आ जाते हैं पहले, तो x प्लस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है। जब ऐसे आप नंबर कैंसिल करते हो तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, मतलब x का वैल्यू 3 है। लेकिन x का वैल्यू 3 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बेस कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0। तो x का वैल्यू 3 तो वैसे ही नहीं हो सकता। दूसरा, बेस जो है 1 भी नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गई। अब ये बचा है आपके पास इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 3। तो ये बनेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 माइनस का x माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, राइट। अब मैंने जो दिमाग लगाया था, मतलब गलत हो गया, कोई बात नहीं। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे सम ऑफ है ना, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, तो सम ऑफ रूट निकाल के हम इसको माइनस बी अपॉन ए कर सकते हैं, राइट। बट फिर बाद में ये भी पता चला कि यार उसमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि एक्स की पॉसिबल जो वैल्यूज है सम ऑफ रूट में, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो थोड़ा सा चेक करने वाली बात थी, राइट। तो फिर बाद में एहसास हुआ मुझे, बट कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो अगर मैं इसका सम ऑफ रूट निकालता हूँ तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस का 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस का 6। तो ये बनेगा रूट 33, मतलब d का वैल्यू 33 आ जाएगा, तो रूट d की वैल्यू आ जाएगी रूट 33। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ सो दैट आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, फर्दर। तो यहाँ से x का जो वैल्यू बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2, तो 3 प्लस रूट 33 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 33 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ से जो x का वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि रूट 33 होता है कितना 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 में से नेगेटिव आना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये बात समझ में आई कि यार x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि 3 प्लस रूट 33 अपॉन 2 है। तो जब हमने सम ऑफ रूट किया था ना, तो सम ऑफ रूट में तो इसको भी ऐड कर लेता है। हालांकि वो भी लॉजिक यार गलत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई जब आप उसको ऐड कर लोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आंसर की इन्होंने दे रखी है ऑप्शन नंबर सेकेंड की टाइप।
क्योंकि वेन एवर वी आर टेकिंग सम कंबाइन कर रहे हैं ना, तो फिर तो हम प्लस करके हम इसको 3 भी बना सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, तो वैसे ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखते हैं ऑब्जेक्शंस में क्या आता है। ये भी बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था लेकिन टाइम टेकिंग था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है आपसे कि 2 वेसल है, वेसल ए और एक वेसल है बी, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क है 100% और यहाँ पे पानी है 100%, राइट, ऐसा बोलता है। तो हमने सबसे पहले x लीटर ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। उसके बाद वापस से b से a में x लीटर हमने फिर ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ से, ठीक है। तो मिल्क और अभी ये पानी बन जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले मिल्क से पानी बनाया, तो उसके बाद ये मिक्सचर बन जाएगा, है ना भाई, मिक्सचर बन जाएगा, इसमें मिल्क और वाटर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है यार, कि यहाँ पे मिल्क आपने x लीटर लेके आए, तो यहाँ पे मिल्क हो गया x, वाटर है 60, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा? तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो हो जाएगा वो x अपॉन x प्लस 60 हो जाएगा। परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। x अपॉन एक्स प्लस 60, राइट। अब आप मतलब ये क्वांटिटी होगी, है ना, क्वांटिटी होगी। अब मेरा सवाल ये है कि इस वाली क्वांटिटी में से फिर मैंने x लीटर रिमूव किया। नाउ आई कैन अप्लाइड रूल ऑफ एलिगेशन, राइट। तो एलिगेशन क्या बोलता है कि यहाँ से अभी तो फिलहाल जब आप वापस से ए में लेके आओगे तो यहाँ तो मिल्क 100% है ना भाई, क्योंकि पहले आपने मिल्क से पानी में डाला तो ये मिक्सचर बना, फिर अभी भी जो कंटेनर है वो तो अभी 100% मिल्क के साथ में। तो यहाँ से जो मिल्क है वो x अपॉन एक्स प्लस 60 है। जो मिल्क आपके पास अवेलेबल है वो 100% बोले तो 1 है, और जो फाइनल रेशियो बना वो 15/19 है। बिल्कुल क्लियर है, रूल ऑफ एलिगेशन में तीनों चीजें पता चल गई, परसेंटेज, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, तो यहाँ से जो मैं क्वांटिटी लेके आ रहा हूँ, एक्स लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 60 माइनस एक्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपने 60 में से, भाई 60 लीटर था ना आपके पास, आपने एक्स लीटर रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये बन गया था 60 प्लस एक्स। और फिर आप जब इसमें 60 माइनस एक्स में फिर से जब एक्स लेके आएंगे तो अल्टीमेटली तो ये 60 बन जाएगा फाइनल, राइट। अब यहाँ पे बस रूल ऑफ एलिगेशन लगा देना है, वेटेड एवरेजेस को बोलते हैं, राइट। चलो, तो वेटेड एवरेज क्या बोलता है कि 15/19 शुड बी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 60, भाई मैंने ये वाले तरीके आपको पहले भी सिखाया है, प्लस 60 माइनस एक्स, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डिवाइड बाई इनके सम से डिवाइड करेंगे, तो इनके सम्स में तो सिर्फ 60 ही बचेगा, ठीक है। नाउ तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इस वाली साइड पे लिखता हूँ, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे बनेगा एक्स प्लस 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 15/19, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, तो ये बनेगा 3600 इंटू 19, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बनेगा 15 इंटू 6 900 एक्स प्लस 3600 इंटू 15, आपको सॉल्व नहीं करना तो दिमाग लगाना था, राइट, बन गया। अब मैं 900 एक्स इक्वल्स टू, भाई 3600 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 4, ठीक है भाई, 15 में 19 में से 15 गए 4, तो यहाँ से x का वैल्यू 9 इंटू 4 तो 16 लीटर आ जाएगा, जो कि सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आई होप आपको एंजॉय, आपने सीखा होगा कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा पीएचडी नहीं करा है, अभी तो जस्ट जो आंसर की आई है बस उसी से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हो सकता है और भी आसान तरीके आपको देखेंगे और मैं ही अपलोड करूँगा, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ज्योमेट्री का फर्जी सवाल था, ठीक है, बिल्कुल ही फर्जी था। बोलता है एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी, AB और BC बराबर है, AB और AC बराबर है और ये 80 सेंटीमीटर है। तो आपसे सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स का वैल्यू पूछा तीनों का, राइट। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया फॉर्मूला अगर तीनों साइड नोन है तो हीरोज फॉर्मूला काम कर सकता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये बनेगा सेमी पेरीमीटर इज 50 50 80 डिवाइड बाई 2 तो 90। अब 90 में से 50 गए 40, 90 में से 50 गए 40 और 90 में से 80 गए 10, ठीक है।
तो ये तो 900 का रूट 3 बन जाएगा और 40 का रूट मतलब 40 हो जाएगा। तो एरिया आ गया 1200, राइट, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास 3 हाइट होती है, ठीक है। तो जो हाइट ये है h1 और ये हाइट h2 है और हाइट h3 बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइड सेम है, ठीक है। तो 1200 इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस है। अगर मैं 80 को लेता हूँ तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट h1 है, तो वही हो जाएगा 40। तो h1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। नाउ अगर मैं बेस 50 को लेता हूँ तो 1200 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 50 इंटू h2, ठीक है।